ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ 7 ਤੋਂ 8 ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਸੈੱਟ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡਰ, ਇੱਕ ਭੈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰੇਕ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਡੈਂਟਿਸਟ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਨਿੰਗ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਰੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡੈਂਟਿਸਟ ਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਂਟਿਸਟ ਜਾਂ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਓਪਨ ਹੋਏ ਆ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਹੁਣੇ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਨਿਕ ਨੇ ਜਾਂ ਡੈਂਟਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਹਲੇ ਹੌਲੀ ਓਪਨ ਹੋਣਗੇ, ਰੀਓਪਨ ਹੌਲੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ PPE ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਧੀਮੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਓਪਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਓਪਨ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ, ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੀ ਨੁਸਖੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਹਿਮਾਨੀ ਕਸ਼ਯਪ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਹਿਮਾਨੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਮਝ ਪਾਓਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਡੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਓਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਛਿੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਖੰਘਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो दांतों में समस्या है वो किस तरह की है। हम इसे कैटेगराइज करते हैं कि एक तो इमरजेंसी वाली समस्या हो सकती है जिसमें आपको दर्द हो सकता है, मुंह में छाला हो सकता है, कोई ऐसा पैना नुकीला आपका दांत हो सकता है, या कोई आप डेंचर पहनते हैं तो उसका कोई हिस्सा आपको चुभ रहा होता है, या कोई ऐसा छाला है जो कि हील नहीं हो रहा होता है। तो ये सब आपकी इमरजेंसी सर्विसेज में आती हैं जिसको आपको राइट अवे आपको चाहिए कि कोई इसको देखे। तो उन सारी समस्याओं के लिए आपको कोई भी दवाई खा के उसको दबाने की ज़रूरत नहीं है। जी। डॉक्टर्स उन सब चीज़ों के लिए अवेलेबल हैं और आप अपनी समस्याएं बताकर, अपॉइंटमेंट लेकर, फ़ोन पर भी स्क्रीनिंग करी जा रही है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि आपको किस तरह की समस्याएं हैं, आपको कोई फीवर तो नहीं रहा है पिछले 2 हफ्तों में, या आपको कोई ज़ुकाम तो नहीं रहा है। एंड कई बार ऐसा भी देखा गया है कि फ़ोन की स्क्रीनिंग के दौरान ही आपको डॉक्टर्स ऐसे उपाय बता देते हैं कि आप घर बैठकर भी शॉपर से कोई क्रीम लेकर या फिर कोई टैबलेट लेकर आप उस समस्या का निजात पा सकते हैं। नॉन इमरजेंसी सर्विसेज में हमारी जो हम रेगुलर अपनी विजिट्स के लिए जाते हैं जिसमें सफाइयाँ होती हैं या हमारी कोई फिलिंग है जो कि दर्द नहीं कर रही है,
या हमारी क्राउन्स की अपॉइंटमेंट थी, वो हमारी नॉन इमरजेंसी सर्विसेज में आती हैं। तो उन सारी चीज़ों के लिए अभी जो ऑन्टेरियो डेंटल एसोसिएशन की तरफ से जो गाइडलाइन आई थी वो इस तरह की थी। पर अभी 1 जून से इसमें भी हमने काफ़ी रिलैक्सेशन देखा है कि जो कि नॉन एसेंशियल सर्विसेज हैं उनमें भी काफ़ी हद तक डॉक्टर्स को अलाउड है कि अब वो मरीजों को उस तरह से देख सकते हैं। पहले सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज के लिए था। उसके बाद अब आप ये बदलाव देखेंगे जिस भी आप डेंटल ऑफिसेज में जाते हैं कि जो शुरू से हम स्टार्ट करें, जो आप एंट्रेंस जहाँ पर होता है हमारा वेटिंग एरिया जो होता है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। अच्छा। वेटिंग एरिया अब नहीं हुआ करेगा, और अगर है तो वेटिंग एरियाज़ में स्पेसिफिकली प्लास्टिक या फिर लेदर की ही सीट्स रखने का एक अमेंडमेंट है, जिनको हम प्रॉपरली क्लीन कर सकते हैं, सैनिटाइज कर सकते हैं। जो 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 शीट होती है, प्लास्टिक की शीट जो ट्रांसपेरेंट, उसकी बात कर रहे हैं? प्लास्टिक जो मटेरियल, जैसे प्लास्टिक की शेयर्स जो होती हैं, जी। पहले आप देखते थे कि जैसे वेलवेट का भी सोफ़ा अवेलेबल होता है वेटिंग एरियाज़ में, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा लुक देता है देखने पे। पर अभी स्पेसिफिकली जिन सर्फेसेस को हम क्लीन कर सकते हैं वेटिंग एरियाज़ में, उन्हीं मटेरियल्स को हमने यूज़ करने के लिए हमसे कहा गया है। उसके अलावा जो आप देखेंगे कई जगहों पर जो आपका अटेंडेंट है वही आपको या तो गाड़ी में बाहर वेट करने के लिए बोलते हैं या फिर बिल्डिंग के बाहर वेट करने के लिए बोलते हैं कि जब आपकी अपॉइंटमेंट हो तो आप जब गेट खोलें तो वो अटेंडेंट ही आपके लिए गेट खोले। जी। आप जो अपने साथ फ़ोन कैरी कर रहे हैं, ये मैं बहुत छोटी छोटी डिटेल्स इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये पता चले कि नई चेंजेस क्या आ रही हैं। बिल्कुल ठीक। सैनिटाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन डेंटल ऑफिसेज के लिए नया नहीं है, डॉक्टर्स हमेशा से इसको करते आए हैं। अभी सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग का प्रोटेक्शन का प्रोटोकॉल जो कि बहुत नया आया है, और एक समय पर हम कितने मरीजों को देख सकते हैं, कितने लोगों की ऑफिस में अवेलेबिलिटी उस तरह से हो सकती है, उन चीज़ों में अमेंडमेंट आया है। तो जो आपका असिस्टेंट होता है डॉक्टर्स का, वो आपको बाहर से ग्रीट करके आपके जो आपका बैग है आपके साथ, जो आपके सेल फोन्स हैं वो बाहर एक पॉलिथीन में या टेबल क्लॉथ पर ही आपको छोड़ के आपको सबसे पहले हैंड वॉश करने के लिए ले जाया जाता है। एंड देन आपको हाथों को अपने इस तरह रखना है ताकि आप और किसी सरफेस को ना टच करें। आपको एक रिंस के लिए कहा जाता है कि आप माउथ वॉश अपना करें जब आप वॉशरूम में जाएं, एंड फिर माउथ मास्क पहन के तब आप क्लिनिक में एंटर करते हैं। एंड डॉक्टर्स वहाँ पे रेडी होते हैं। प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद भी जिन सर्फेसेस को जो भी कांटेक्ट में आई हुई होती हैं उनको सैनिटाइज करने का पूरा प्रोटोकॉल है। और उसके अलावा आपने पेशेंट ने उसी तरह वापस जाना है। जो हम कई बार देखते हैं कि रिसेप्शन पे आप पेमेंट्स करते हैं, अब वो भी डिजिटली हो रही हैं कि आप 2 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करके और तब आप रिसेप्शनिस्ट से अपना कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। तो जितनी दूरी मेंटेन हो सके आप कर सकते हैं। पर ऐसा अब नहीं है कि अब आप अपनी सर्विसेज के लिए नहीं जा सकते हैं। लाइक अब आप धीरे धीरे अपने आप को कंफर्टेबली उस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। सो ये जो आपने जो प्रिकॉशंस बताए हैं, जो अमेंडमेंट्स बताई हैं, ये सारी की सारी गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल में दी गई हैं? जी। जो भी कोई गाइडलाइंस आती हैं ओडीए की, सभी डेंटल ऑफिसेज उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। एंड सभी के लिए यही निर्देश है अभी के जो कितने असिस्टेंट्स हम एक समय में रख सकते हैं, कितने डेंटिस्ट एक टाइम पे काम कर सकते हैं, कितने हाइजेनिस्ट एक टाइम पे काम कर सकते हैं, जो आपका एडमिन एरिया है जहाँ पे आप रिसेप्शन और सब ट्रीटमेंट कोऑर्डिनेटर्स वगैरह होते हैं, एक समय पे कितने लोग ऑफिस में हो सकते हैं। तो ये सारी डायरेक्शंस गाइडलाइन बिल्कुल ओडीए के अकॉर्डिंग ही काम करी जा रही हैं। सो जिथे ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਟੱਚ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਖੰਘ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਲੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪਾਨ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
मैं खुद इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती हूँ कि जो आपका पूरा शरीर है वो एक कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन है जी। ऐसा नहीं है कि माफ़ करना ਤੁਸੀਂ ਮਾਨੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਰਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ थोड़ा जा हाँ जी ਹੁਣ ठीक है जी। जो हमारा शरीर होता है वो पूरा एक साथ जैसे जुड़ाव है उसका जी। तो आपको कई बार ये चीज़ें नहीं जैसे पता होंगी कि कभी आपकी बॉडी में कोई और अगर बीमारियां चल रही हैं जी। अगर आपकी किडनी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं या आपके लिवर से रिलेटेड इश्यूज़ हैं या पेट से रिलेटेड इश्यूज़ हैं जी। उनके सिम्टम्स कई बार हम मुंह में भी देखने को मिलते हैं। जैसे अच्छा। जो लोग डायबिटिक होते हैं उनका मुंह काफ़ी ज़्यादा सूखा हुआ रहता है, उनको हैलिटोसिस की या बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं जी। जो स्मोकर्स होते हैं उनके लंग्स पे जो अंदर इफेक्ट पड़ रहा होता है वो तो एक अलग होता है, उसके अलावा आपके मुंह में थूक बनना कम हो जाता है जी। जो हमारे मुंह की खाल होती है वो हमारे पूरे शरीर की किसी भी खाल से 7 गुना ज़्यादा पतली होती है। अच्छा। इसका मतलब ये होता है कि उसमें जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है किसी भी चीज़ को खाने की बाद जो भी अब वो एब्जॉर्प्शन होता है वो मुंह में सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर आप उसमें टॉक्सिन्स डाल रहे हैं तो वो भी 7 टाइम्स फास्टर रेट से एब्जॉर्ब हो रहे हैं। अगर आप उसमें हेल्दी चीज़ें डाल रहे हैं तो भी वो 7 टाइम्स ज़्यादा फास्टर होते हैं। जी। माफ़ करना एक कॉल ले लिए फिर ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੈਜਰਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਦੋਂ ਨਿਊ ਬੋਰਨਸ ਦੇ ਦੰਦ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਨਿਊ ਬੋਰਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦੰਦ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈਣੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੰਦ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ, ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰਕ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਿਰ ਦੁਖਣਾ ਇਹ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ, ਇਹ ਨॉर्मल है। वो ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ हैं, ਇਹ ਸਵਾਲ मैं लिखा ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। जी। सो कई बार जैसे जब आप स्ट्रेस में होते हैं, ये एक लाइफस्टाइल की हम बात कर रहे हैं, अगर आप स्ट्रेस में हैं या आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है और आपका खाना पीना बहुत अनहेल्दी है तो ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं कि आपकी ओरल हेल्थ कैसी है। जी। तो बहुत ज़रूरी है कि आपका एक स्ट्रेस लेवल भी मेंटेन्ड हो, आपका जो खाना पीना है वो भी प्रॉपर हो, हाइड्रेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੱਸਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि जो हम मेंटली एक स्ट्रेस लेते हैं उसका इफेक्ट बॉडी पे बहुत जल्दी आता है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो बॉडी के ऊपर एडवर्स इफेक्ट डालते हैं। अब वो चाहे मुंह का हिस्सा हो या शरीर का कोई और हिस्सा हो, तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप बहुत लाइट हेडेड रहें, आपकी स्लीप बहुत अच्छी रहे, आपका माइंड पॉजिटिव रहे। ये ओवरऑल ये चीज़ें आपकी हेल्थ पे कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर आप अच्छा खा भी रहे हैं, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, पर अगर आपकी स्ट्रेस फ्री लाइफ नहीं है तो भी आप ओवरऑल वो डेवलपमेंट नहीं देखेंगे अपने अंदर। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपका एक ओवरऑल जो एक लाइफस्टाइल है वो बहुत हेल्दी होना चाहिए। योर माइंड हैज़ टू बी ऑलवेज पॉजिटिव अबाउट सर्टेन थिंग्स। तो यही एक अप्रोच रहती है। तो अगर आप कई बार देखेंगे कि जो लोग ज़्यादा तनाव में रहते हैं उनमें शराब पीने की कंजम्पशन रेट ज़्यादा होती है और जो हमारे खाने पीने का जो भी सामान होता है उन सबका एक पीएच होता है जो 0 से लेके 7 तक पीएच होता है। इसको हम एसिडिक खाना बोलते हैं। 7 से लेके 14 के ऊपर जितने खाने होते हैं उनको हम बेसिक बोलते हैं। बॉडी के लिए सबसे अच्छा खाना बेसिक होता है। इसमें आपकी सब्जियां होती हैं, आपके फ्रूट्स आते हैं, आपके जूसेस आते हैं। जी। जो एसिडिक खाना होता है, जो हम ब्रेड, चॉकलेट्स और बटर, जितना भी हम मैदे तो बढ़िया चीज़ें, हाँ जी, जितना भी हम सोच सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए, पर आपने एक बैलेंस क्रिएट करके रखना है कि मतलब वंस वाइल चल जाता कि ਤੁਸੀਂ ਵੀਕ 'ਚ ਜਾਂ 2 ਵੀਕ ਬਾਅਦ ਖਾ ਸਕਦੇ। अल्कोहल इज हाईली एसिडिक
सबसे ज़्यादा एसिडिक की उसमें क्षमता होती है। तो अगर आप इस तरह का किसी समय में कंज्यूम कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप फिर बॉडी को उसका रिकवर जोन भी दें। प्रॉपर आप हाइड्रेशन लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए या हरी ਮਾਫ सब्जियां ਕਰਨਾ, ज़्यादा। ਜਦੋਂ हाँ जी। ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੇਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਜਾਓ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ? मैं पर्सनली अगर मैं अपने लिए बात करूं तो मुझे सबसे ज़्यादा एक कोकोनट वाटर में बहुत हाई पोटाशियम और मैग्नीशियम जिसे होता है, तो कोकोनट वाटर का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा माना गया है कि बॉडी को हाइड्रेशन के लिए हेल्पफुल होता है। जो भी आपकी स्मूदीज़ आप लेते हैं जी, तो उनमें जो आप जिससे वाटरमेलन है या फिर जितने भी 90% 80% फ्रूट्स होते हैं जिनमें वाटर की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, आप उनका कंजम्पशन जितना ज़्यादा से ज़्यादा करें तो बॉडी हाइड्रेटेड रहती है। हमारी बॉडी 70% पानी है जी जी। तो उसकी कमी से भी आपकी शरीर से जो एक टॉक्सिन्स होते हैं वो सिक्रीट होते रहते हैं जी। तो जैसे अगर बॉडी में कभी फ्री रेडिकल बना तो आप अगर अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट ले रहे हैं, अभी ऐसे समय में बहुत ज़रूरी है कि बाहर के एनवायरनमेंट को आप चेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने शरीर की जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाएं, उसको स्ट्रॉन्ग करें। विटामिन सी की मात्रा आप डेली लीजिए, जिंक है उसको आप डेली लीजिए। ये सब आपको इंटरनली स्ट्रॉन्ग बनाएंगे कि मान लीजिए अगर आपको हो भी जाता है कोरोना तो एटलीस्ट आपकी बॉडी में उसको फाइट करने की क्षमता है, उसमें क्षमता है। बिल्कुल। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी इम्यूनिटी को उस तरह से स्ट्रॉन्ग रखें और अपनी लंग्स को इस समय पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखने की ज़रूरत है कि एक आसन भी जिसे बताया जाता है डॉक्टर्स के थ्रू कि आप उल्टे लेटकर और अपनी सांस आप लें, डीप ब्रेथ लें और फिर छोड़िए उसको और इसको 2-3 मिनट के लिए करिए दिन में 1-2 बार। मतलब जो हमारे मुंह के बल हम लेटते हैं, कमर के बल जैसे आप उल्टे लेट जाएं, अच्छा, एंड फिर आप डीप ब्रीदिंग करें। उससे जो आपकी लंग्स, जो पीठ की तरफ वाला लंग होता है वो फूलता है जी जी, तो उसकी कैपेसिटी बढ़ती है। तो सांस को अंदर भी रखना है कि डीप ब्रीदिंग लेनी है, डीप ब्रीदिंग लेनी है। क्योंकि मान लीजिए अगर आपको कोरोना हो भी जाता है तो आपके लंग्स इतने स्ट्रांग होंगे कि कम से कम आप वेंटिलेटर पे नहीं जाएंगे। तो ये सारी बहुत लिटिल मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर आप अपनी डेली रूटीन पे, और ये एक दिन में नहीं होता, ये डेली एक लाइफस्टाइल है जो आपने अपनाना पड़ता है। और ऐसे समय पे तो अब जो लोग नहीं भी हेल्दी लाइफस्टाइल के फेवर में रहते थे, अब उनको भी मुझे लगता है कि एक अवेयरनेस उस तरह से आ गई है, तो काफ़ी हम सोसाइटी में वो चीज़ें देखने को हमें मिल रही हैं। सो एक जड़ा स्कॉलर ने जो सवाल पूछा था उसमें ये था कि बच्चे के जब दांत आते हैं, जब दांत आने शुरू होते हैं तो बच्चे को बुखार होना या उसका सर में दर्द होना जी नॉर्मल है, तो इन दिनों में कैसे प्रिकॉशन लें और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे उसकी टेक केयर की जा सकती है? हमारी टर्मिनोलॉजी में इसको टीथिंग बोलते हैं। जब छोटे बच्चों के दांत निकल रहे होते हैं, बच्चा कहीं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, उसको कभी कुछ खाएगा नहीं वो। बहुत सारे मार्केट्स में ऐसे आप अगर शॉपर्स वगैरह जाएंगे तो वहाँ पर ऐसे ऑइंटमेंट्स अवेलेबल होते हैं जो कि बच्चे की अगर आप गम्स पे या मसूड़ों पे मसाज करें तो वो थोड़ी देर के लिए उसको सुन कर देते हैं। तो मान लीजिए अगर रात का समय है, बच्चा सो नहीं पा रहा है, उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, आप उसको अप्लाई करके छोड़ सकते हैं, एटलीस्ट उसकी जो नाइट है वो रहेगी। उसके अलावा आप रेमेडियल तौर पे कोई भी नारियल का तेल या मस्टर्ड ऑयल जो भी आपके घर पे अवेलेबल हो उससे भी मसाज कर सकते हैं, तो उससे वहाँ का जो एक सर्कुलेशन है मसल्स का वो बढ़ता है। तो मसाज मतलब उसके सर में या बॉडी में, मसूड़ों पे, अच्छा, उंगली से आप मसाज कर सकते हैं। अच्छा, कोकोनट का ऑयल जो होता है, कोकोनट का ऑयल या जो भी आप मतलब आपके पास मस्टर्ड ऑयल है अगर घर पे अवेलेबल, तो वो आप लेके उसको उंगली से मसाज कर सकते हैं वहाँ पे, जिससे उस एरिया का सर्कुलेशन बढ़ता है। तो सर्कुलेशन बढ़ने से दांतों को और ज़्यादा एक प्रेशर रिलीज होता है, जो अंदर से वो एक प्रेशर डाल रहे हैं, वही टीथिंग का प्रोसेस होता है। तभी बच्चा ज़्यादा चिड़चिड़ा और थोड़ा पेनफुल भी होता है कई बार, तो आप वो चीज़ें कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा मतलब उस पर बहुत ही हल्के हाथ से दिन में 1-2 बार। जी एक कॉल ले लिए फिर उस तो बाद चर्चा करते हैं। जी सत श्री अकाल जी, स्वागत है जी ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਕੰਸਰਨ ਸੀਗਾ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਕੈਵਿਟੀ। ਲਾਈਕ ਮੇਰੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਲਾਸਟ ਤਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੈਵਿਟੀ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਆ। तो
ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਹਜੇ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਫ ਦੀ ਈਅਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। जी डॉक्टर साहब उन्होंने पूछा भी कैविटी अजय स्टार्ट हुई है, मतलब अभी अभी शुरू ही हुई है, तो इन दिनों में वो जा तो सकते नहीं, मतलब फील करते हैं कि भी अभी डर लग रहा है ना कि जाना शायद ख़तरे से खाली नहीं है कि डेंटिस्ट के पास जाएं, तो कैसे उसको कंट्रोल किया जा सकता है? पहली बात तो बिना देखे उस चीज़ का कह पाना उसको बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो हमें देख के लग रहा होता है ज़रूरी नहीं है कि एक्चुअल रियलिटी वही हो। कई बार जब आपको आंखों से दिखना शुरू होता है जी, अंदर दांतों की लेयर्स में वो काफ़ी डीप जा चुका होता है, तो बहुत अच्छा होता है कि अगर हम एक सिर्फ अपनी संतुष्टि के लिए एक एक्सरे कराकर उसकी संतुष्टि कर लें कि वो अंदर कहीं डीप नहीं पेनिट्रेट कर रहे हैं जी। अगर वो सिर्फ सुपरफिशियल ही है और आप उसको कुछ ही दिनों से विजिबली देख रहे हैं, तो आप शॉपर से कोई भी एंटी कैरियोजेनिक टूथपेस्ट होते हैं आते हैं, आप वहाँ पे जाके फार्मासिस्ट से बोल सकते हैं, उसको अप्लाई करना स्टार्ट सकते हैं। जो बहुत इनिशियल जैसे बहुत शुरुआती समय पे जो आपको कीड़ा लगना शुरू होता है, तो उसमें कुछ केसेस में रिवर्सिबल चेंजेस देखे गए हैं कि एनामल वापस बनने लग जाता है, पर ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, तो आपने कम से कम 2-3 महीने तक उसका इस्तेमाल कंटिन्यूसली करना है, टूथपेस्ट स्विच नहीं करना है। जो टूथपेस्ट आपने क्या बोला, एंटी कैरियोजेनिक, वो टूथपेस्ट से जो शुरुआती दौर में उसको कंट्रोल किया जा सकता है? क्योंकि जो एक कीड़ा लगना शुरू होता है जिसको हम मानते हैं, कोई ऐसे कीड़ा नहीं होता जो दिखता होता है जी। कुछ आपकी बैक्टीरियाज होते हैं जो वहाँ पे जाकर उस हिस्से को गलाना शुरू कर देते हैं, तो जो कैरियोजेनिक टूथपेस्ट होता है वो रीमिनरलाइजेशन करता है जी, जी। मतलब उसी टूथ स्ट्रक्चर को दोबारा से फॉर्म करने के लिए हम एंटी कैरियोजेनिक टूथपेस्ट रेकमेंड करते हैं जी, जो कि आप अच्छे लंबे समय तक इस्तेमाल करें, और वो अगर बहुत मिनिमल डैमेज है तो वो कई बार रिकवर भी हो जाता है जी जी। सो एक ब्रेक ले लिए, ब्रेक तो बाद आप चर्चा शुरू करांगे दोबारा। सो दर्शकों, अगर तुहाडा भी कोई किसी किस्म का सवाल ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਹਿਮਾਨੀ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਜਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਜਾਇਓ ਨਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਓ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨੁਸਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਹਿਮਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।